السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل RS TV۔ ناظرین، دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے اہم ترین اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک اصلی شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو کہ اس وقت یہودی قوم کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ اسی ٹیکنالوجی سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدے کے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اسے خدا مان لیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر اپنے خود کی تیار کی ہوئی جہنم ہوگی۔ لیکن اس کے فطرت کے مطابق یہ سب کچھ جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بنا خوف و خطرے کے اس کے جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ یہی اصل جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم۔ دجال کے فتنے سے متعلق ہر ایک پیغمبر اپنی قوموں کو اس کے متعلق ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ زمین پر اور کوئی نہیں آیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا آپ پر یہ لازم تھا کہ اپنی امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس وقت کے اندر انہیں نشانیوں سے اس دجال کو پہچان کر اس کا مقابلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کو پہچانا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار اس فتنے سے ڈراتے اور خبردار بلا کیوں کرتے؟ دجال کی ہر ایک نشانی مثلاً اس کی بائیں آنکھ کا کانا ہونا، بال گنگرالے، گندم رنگت، ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اسی طرح کے کئی اور تفصیلات ہمیں پہلے کی ویڈیو کے اندر جان چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر آپ انہی نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ کو شوق کر دیں گے۔ ہمیں ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری تھا، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا انتہائی ضروری ہے، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں، جس شخص سے تم ملے تھے وہ دراصل دجال ہی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری جو کہ پہلے کرسچن تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ میں تمام عورتوں کے پہلی صف کے اندر موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا نصیحت سنانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے کہ جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جوانی کے دنوں کے اندر اپنی 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کے اندر سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگی، موسم اتنا خراب ہو گیا کہ پورے 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کے اندر گولے کھاتا رہا اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں یا کہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے اپنے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش کے اندر نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسا ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر اس مندر یعنی بت خانے کے لفظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر کے اندر ایک بہت ہی بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے زنجیروں کے اندر بندھا ہوا دیکھا۔ اس سے بڑی جسامت کا شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلدی کوئی پھل نہیں ہوگا،
फिर कहने लगा कि मुझे तबरिया के झील के बारे में बताओ, क्या उसमें अभी भी बाकी पानी है? हमने कहा हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी है। उसने कहा कि बहुत जल्द ही ये भी खुश्क होने वाला है। तीसरा सवाल उसने किया कि मुझे जोगर के चश्मे के बारे में बताओ, और उसके बाद गोलन के पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा, और उसके बाद कहने लगा कि मुझे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ कि उसने अब तक क्या किया। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीने के अंदर आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ही दज्जाल हूँ, और बहुत जल्द ये तमाम निशानियाँ पूरी होते ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी, और मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये यथरब है यानी मदीना। देखो मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके आपने 3 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरिक में आए, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में आए। इससे हदीस मुबारका के अंदर हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ इशारा किया गया है कि वो मदीना के मशरिक के अंदर किसी वीरान जजीरे के अंदर कायद है। प्यारे दोस्तों, मदीने के मशरिक के अंदर तमाम अहम तरीन जजीरों की खोज करते हैं तो उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो मदीने के साथ मशहूर अरबेंसी मौजूद है जहाँ से हजरत तमीम दारी का यह जहाज रवाना हुआ था। और इस समुंदर में 4 अहम तरीन जजीरे आते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड, मसीरा आइलैंड जो कि ओमान में है, स्केट्रा आइलैंड जो कि यमन में है, और आखिरी पाकिस्तान का सोला आइलैंड। हदीस मुबारका में ये वाज़ेह है कि दज्जाल न शाम में है और न ही यमन में है, लिहाजा इन चारों में से अब 2 जजीरे बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि इन दोनों में आइलैंड में से दरअसल वो आइलैंड था कौन सा? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मशरिक की जिस तरफ इशारा किया था, अगर हम उसे एक सीधी लाइन खींचें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड ही बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लाइन से काफ़ी दूर हो जाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस के अंदर हमने जाना कि इस आइलैंड पर एक मंदिर भी मौजूद था जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने यानी 1400 साल से भी पहले का इस आइलैंड पर मौजूद था। लिहाजा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमें इस आइलैंड पर एक ऐसे ही मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के इस आइलैंड पर ऐसा कोई मंदिर मौजूद नहीं है। पर हाँ, पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर ये आज भी मौजूद है। जी हाँ, ये मशहूर काली माता का मंदिर है जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के अंदर माना जाता है। इसके भी जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल मौजूद है, बल्कि वही होलिया जैसा के जसासा का था। और ये मंदिर भी यहाँ पर कुछ 100 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि आज से 2000 साल पहले का यहाँ पर मौजूद है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कन्फर्म है कि ये वही जगह थी जहाँ पर हजरत तमीम दारी की दज्जाल और उसके साथी जो जसासा से मुलाकात हुई थी। और दज्जाल के पूछे गए सवालों के मुताबिक जो भी निशानियाँ इसने बयान की, यानी बिसान की खजूरों, तबरिया के झील और गोलान की पहाड़ियों से मुतालिक, वो सब की सब निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। और शायद अब तक ये दज्जाल वहाँ से आज़ाद भी हो चुका है, मगर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये सब निशानियाँ आखिर कैसे पूरी हो चुकी हैं? आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहले बिसान की खजूरों की निशानदही पर गौर करें, क्योंकि बिसान का इलाका पहले फ़लस्तीन के अंदर शामिल था और हज़रत उमर के दौर के अंदर उसे शर्जील बिन हसना और आमिर बिन आस ने फतह किया था, जबकि 1948 तक ये इलाका उर्दन का हिस्सा था जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। बिसान अपनी खजूरों के बागात के लिए इंतहाई मशहूर था और इस वक्त भी बिसान का कुछ इलाका उर्दन के पास है, मगर इस तमाम इलाके के अंदर मौजूद खजूरों के बागात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। इसका दूसरा सवाल था कि बहर तबरिया यानी लीक ऑफ गलीली के मुतालिक क्या इसका पानी अब तक खुश्क हो चुका है? ये झील इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है जिस पर यहूदियों का कब्जा है। इस झील के पास यहूदियों के 4 बड़े शहरों में से एक शहर मौजूद है, और जब रूमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और उसे तबाह किया
तब तमाम यहूदी रबी बहर तबरिया के पास आकर जमा हो गए, यहाँ पर आबाद हो गए और अपनी मजहबी किताब तलमूद को तरतीब दिया। ये यहूदियों के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कि उर्दन की गोलान पहाड़ियों के सबसे बड़े पहाड़ जबल अल शेख से आता है। और उस वक्त सूरत-हाल यह है कि ये झील अपने 100 साल की कम तरीन पानी की सतह पर पहुंच गई है और आसा बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। तीसरा सवाल इसने मशरिक के अंदर मौजूद जहर के चश्मे के बारे में पूछा, जिस पर उस वक्त भी यहूदियों का कब्जा हो चुका है। इसके बाद दज्जाल का अगला सवाल था गोलान की पहाड़ियों के बारे में, जिन्हें 1967 की जंग के अंदर इसराइल ने शाम से छीन लिया था। और इस पहाड़ी इलाके की सबसे ऊंची चोटी जबल अल शेख, जहाँ पर एक तरफ से बैतुल मुक़द्दस और दूसरी तरफ से उसके नीचे से दमशक नजर आता है। इसकी ऊंचाई 9232 फुट है, जिस पर लेबनान, शाम और इसराइल का कब्जा है, क्योंकि ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा तरीन इलाका है, जिसके साथ तबरिया की झील और जोगर का चश्मा भी मौजूद है। इसके साथ साथ बिसान का इलाका भी उसके बिल्कुल पास मौजूद है। लिहाजा अगर हम दज्जाल की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात पर गौर करें तो उन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है, जो कि बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, क्योंकि मार्च 2077 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हाट इसराइल के हवाले करने का मुआहदा करके इस सूरत-हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दज्जाल ने ये सवाल सबसे आखिर क्यों किए। हम सब लोग जानते हैं कि जंगों के अंदर ऊंचे इलाके या फिर पहाड़ी इलाके की क्या अहमियत होती है, खास तौर पर जब उन पहाड़ियों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरे आलमी जंग के बाद होगा, जब हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हरम-ए-गंडन यानी जंग हरमजदून के अंदर मुसलमानों की क़यादत करेंगे और उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसे कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलन हाइट की पहाड़ियों के मैदान को बताया गया है और हक व बातिल की इस जंग का जिक्र अहादीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। इसराइल ने गोलन हाइट पहाड़ियों पर कब्जा करके इस जंग की तैयारी शुरू कर दी है और सिर्फ अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में है कि वो कब दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी कौम की बादशाहत को संभाल कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। और प्यारे दोस्तों, अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों इस वक्त आलम कुफर पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन का ब्लॉक बना करके इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। नादरीन, क़यामत का असल इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास ही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हमने उस वक्त की तैयारी कर ली है? और अगर ये सब निशानियां देखकर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो आखिर कब खुलेंगी? अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नादरीन, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़े बेल आइकन पर ज़रूर दबाना, ताकि हर दुनिया की मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।